welcome back. So in today's video we have to talk about the next biological tool, that is a competent host. ठीक है, so the host, like जब हम host की बात करते हैं तो host can be two. First one, that it can be prokaryotic cells. ठीक है, the host can be prokaryotic, जैसे कि ई कोलाई हमने पढ़ा था. The next, that the plant should be eukaryotic. सो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में हम ई कोलाई बोल सकते हैं, ठीक है. एंड इन द यूकैरियोटिक वी कैन से प्लांट सेल, एनिमल सेल. ठीक है, सो द प्लांट सेल्स एंड द एनिमल सेल्स, ठीक है, और इन सम ऑफ द केसेस फंजाई, ठीक है, these can act as a what? These can act as a competent host. ठीक है, so the host in which we want our desired gene to replicate. So how to make them competent so that that particular host perform the same function which we want them to perform. ठीक है, and what we want that हमारा जो डिजायर्ड जीन है, आर जीन ऑफ इंटरेस्ट शुड रेप्लिकेट, ठीक है, शुड परफॉर्म सेंट्रल डोग्मा, शुड एक्सप्रेस इटसेल्फ बेसिकली. ठीक है, दैट इज व्हाट आवर डिजायर इज. So to make them competent, to make them do what we want to make them do, for that the host should be competent. ठीक है, now how to make them competent? Correct, no? That is the main question. How to make them competent? So see, the foreign DNA is a what? DNA is a hydrophilic molecule. ठीक है, because it's a hydrophilic molecule, and the plasma membrane, like every of the cells, ठीक है, have the plasma membrane. Obviously plant cell also have the plasma membrane, the animal cells also having the plasma membrane. ठीक है, so and the bacterial cell also having the plasma membrane, obviously. So the plant cells, जो plasma membrane है, that is the hydrophobic in nature. ठीक है, because of the like bilipid layers. ठीक है, and our DNA is hydrophilic. ठीक है, and because the DNA is hydrophilic, it cannot pass through the plasma membrane. ठीक है, तो there should be some measure ना, कि उसको क्या करें, there should be some technique कि जो हमारा DNA है वो क्रॉस कर जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. ठीक है, सो इसी को बोलते हैं कॉम्पैक्ट, लाइक कॉम्पिटेंट बनाना. ठीक है, कॉम्पिटेंट बनाना सेल को, होस्ट सेल को, ताकि वो हमारा डिजायर्ड जीन जो है वो ले सके, एंड देन फिर वो जो हमारा डिजायर्ड जीन है वो होस्ट सेल के डीएनए का पार्ट भी बन जाए. ठीक है, क्योंकि हमारा जो डिजायर्ड जीन है जब तक वो होस्ट सेल के डीएनए का पार्ट नहीं बनेगा, तब तक वो क्या होगा, एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा. ठीक है, वो डॉर्मेंट मॉलिक्यूल की तरह पड़ा रहेगा इनसाइड द सेल. जब तक वो डीएनए, होस्ट सेल के डीएनए का पार्ट नहीं बनेगा हमारा डिजायर्ड जीन, तब तक वो सेंट्रल डोग्मा परफॉर्म करेगा नहीं, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा नहीं. ठीक है, क्या करेगा, वो डॉर्मेंटली लाए रहेगा. ठीक है, इट विल लाई डॉर्मेंटली इन द सर्फेस ऑफ इनसाइड द पर्टिकुलर होस्ट सेल. ठीक है, सो टू मेक देम कॉम्पिटेंट, टू मेक होस्ट कॉम्पिटेंट, ठीक है, सो देयर शुड बी व्हाट वी हैव टू मेक श्योर. ठीक है, टू मेक host competent, what? Host competent, we have to make sure that first thing, the plasma membrane should be exposed. The plasma membrane should be what? Exposed. Okay, exposed as mean like as if the plasma membrane should be like the plant cell, like the cell. ठीक है, the cell should be without cell wall. ठीक है, that means cell without cell wall. ठीक है, तो and the cell without cell wall is called as what? Protoplast. ठीक है, cell without cell wall is actually called as protoplasm. So the plasma membrane should be exposed. उस पे जो cell wall है वो हट जाना चाहिए. ठीक है, cell wall की लेयर नहीं होनी चाहिए, और cell wall is generally present where
या तो बैक्टीरियल सेल्स में या तो फिर प्लांट सेल्स में, ठीक है। तो बेसिकली हम प्लांट सेल्स के या फिर बैक्टीरियल सेल्स के जो सेल वॉल है उनको लाइज्ड करेंगे, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज, तो सेल्यूलेज एंजाइम की हेल्प से लाइज्ड करेंगे, ठीक है। बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल को हम लाइजोजाइम एंजाइम से लाइज्ड कर देंगे, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, सेल हमारा बन जाएगा विदाउट सेल वॉल, ठीक है। तो सेकेंड थिंग्स, ठीक है, जो हमने ध्यान में रखनी है, दैट इज as I said, the plasma membrane is what? The plasma membrane is hydrophobic. It is hydrophobic because of the presence of, like, because they have what? Because they have the bilipid layer. Made up of, the plasma membrane is made up of what? Bilipid layer, that means phospholipid layers होती हैं, ठीक है। phospholipid layer होती है, ठीक है। bilipid layer, that means यहाँ पे क्या है, phospholipid layer है, ठीक है, that is phospholipid layer है, ठीक है। एंड आर डीएनए, ठीक है, विच इज अ नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, इट्स अ व्हाट, इट्स अ हाइड्रोफिलिक, सो इट्स अ हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है। दैट इज व्हाई, ठीक है, दैट्स व्हाई इट कांट एंटर, और वी कैन से इट कांट पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन कि वो पास हो नहीं पाते, ठीक है, थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज वी ऐड, ठीक है, we add divalent cations, ठीक है। what we add divalent cations, that is calcium 2 plus, ठीक है, ions टू इंक्रीज दीज। अगर हम ऐड करते हैं डाइवेलेंट कैटायंस को, तो ये क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द परमिएबिलिटी, इट विल इंक्रीज द परमिएबिलिटी, ठीक है, ऑफ द मेम्ब्रेन, इट विल इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। सो जो हमारा डीएनए है वो इजिली क्या हो जाएगा, इट विल pass the plasma membrane. So because the plasma membrane is hydrophobic, ठीक है, and the DNA is what, hydrophilic, negatively charged, DNA is always negatively charged, it's, ठीक है, it's hydrophilic, so it can't pass through the plasma membrane. So we have to add what, divalent cation, that means Ca2 plus, which actually increases the permeability of the membrane, ठीक है, and hence by adding the divalent cations our DNA can easily pass through the plasma membrane. Now our DNA, ठीक है, has come inside the plasma membrane, ठीक है। अब जो हमारा डीएनए है, ठीक है, वो एंटर हो चुका है किसमें, सेल में, ठीक है, लाइक वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास कर चुका है, क्रॉस कर चुका है, तो आर जीन हैज गॉन, ठीक है, इनसाइड, द जीन हैज गॉन inside the cell. So this is the condition, the gene has gone inside the cell. Now we will apply some specific techniques, ठीक है, to make our gene, ठीक है, this particular gene, this is a desired gene, actually this is a desired gene, or we can say gene of interest, ठीक है, this gene is a desired gene, or we can say gene of interest. तो ये now we will apply some of the techniques to make this particular gene the part of the host DNA, okay. For that particularly some techniques are, the very first one, okay. So the very first one is repetitive stimulation of heat and cold. Repetitive stimulation of heat and cold. This is the very first technique. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम रिपीटेटिव वे में हीट एंड कोल्ड का स्टिमुलेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, वी विल प्लेस आर जीन, ठीक है, ऑन द आइस ब्लॉक,
ठीक है, हम अपनी जीन को क्या करेंगे, आइस ब्लॉक में रखेंगे, देन वी विल शिफ्ट दैट जीन टू अ सराउंडिंग हैविंग द 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, सो हमने क्या किया, हमने जीन को किस पे रखा, ऑन आइस ब्लॉक। ठीक है, हमने आइस ब्लॉक पे रख दिया। ठीक है, एंड देन फिर क्या किया, फिर इसको ट्रांसफर किया। ठीक है, ट्रांसफर किया इन द एनवायरमेंट। ठीक है, हैविंग व्हाट 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, ट्रांसफर टू द एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट में हमने ट्रांसफर किया हैविंग 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नाउ वापस से यहाँ से हमने वापस से क्या किया, वापस से आइस ब्लॉक पे प्लेस किया जीन। देन फिर वापस से हमने क्या किया, वापस से 46 डिग्री टेम्परेचर पे लेकर आए। देन फिर वापस से हीट शॉक, सॉरी कोल्ड शॉक दिया, फिर हीट शॉक। तो ये क्या, ये कोल्ड एंड हीट, कोल्ड एंड हीट एंड कोल्ड एंड हीट शॉक ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम। क्या दे रहे हैं हम, शॉक ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं शॉक ट्रीटमेंट। ठीक है, कोल्ड एंड हीट शॉक ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, कंटिन्यूअस कोल्ड एंड हीट शॉक ट्रीटमेंट की वजह से जो पर्टिकुलर जीन है इट विल गो एंड बाइंड विद द होस्ट डीएनए। ठीक है, ऑटोमेटिकली बाय गिविंग दिस शॉक ट्रीटमेंट जो जीन है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली विल गो एंड बाइंड विद द होस्ट डीएनए। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ वन ऑफ द मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड, so the next technique is the vectorless technique. ठीक है, the next technique is vectorless technique. The next is the vectorless technique. ठीक है, और vectorless techniques में the very first one is chemical method. It is chemical method. So इस chemical method में क्या करते हैं, we used to take the protoplast, protoplast, ठीक है, and plus our desired gene. ठीक है, desired, ठीक है, and we keep them in a medium, ठीक है, kept in a medium containing, ठीक है, what, PEG, that means polyethylene glycol, ठीक है, polyethylene glycol. So if we kept like protoplast है, that means our plasma membrane is exposed, ठीक है, and a desired gene, plus दोनों को क्या रखेंगे, in a medium, kept in a medium, that means petri dish में the medium is there, like whatever the culture, and plus what, the plus medium is there. ठीक है, the medium having what, polyethylene glycol, and this polyethylene glycol will facilitate the binding of the combining of the desired gene, या फिर it will facilitate the entry of the desired gene into the protoplast. ठीक है, so it will do what, it will facilitate the entry of foreign gene into host cell. ठीक है, so this makes what, this makes the chemical method, protoplast plus desired gene. ठीक है, kept in a medium. ठीक है, that means the petri dish में रखेंगे, obviously the petri dish having the both of the things, the protoplast and desired gene. ठीक है, and along with the culture having what, having the polyethylene glycol, which actually facilitates the entry of this desired gene into the protoplast. ठीक है, so this is the chemical method. ठीक है, next method, so the next method is gene, नहीं क्या है, gene gun, correct, the gene gun. ठीक है, gene gun, शॉटगन मैथड, ठीक है, या फिर उसको बायोलिस्टिक मैथड भी बोला जाता है. ठीक है, सो दीज आर द मैथड्स जो कि हमने अभी पढ़ना है, विच इज द वेरी इंटरेस्टिंग वन. ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज दिस इज ऑल्सो वेक्टरलेस. ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेक्टरलेस मैथड. ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टरलेस टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, उसी में हम नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो भी वेक्टरलेस ही है. ठीक है, एंड दैट इज द जीन गन.
gene gun, shotgun method, shotgun method and ballistic method. ओहो बड़ा नाम है बहुत, many names are given. ठीक है, सो जीन गन, शॉटगन मैथड, बायोलिस्टिक मैथड. ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें जो जो हमारा डिजायर्ड जीन होता है, ठीक है, द डिजायर्ड जीन इज कोटेड विद माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन. Okay, so the desired gene is actually coated with the microparticles of gold and tungsten and are bombarded. Okay, and bombarded. Okay, and bombarded into the target cell. Into the target cell with high velocity. What? With high velocity. ठीक है, so that means our desired gene, that means the desired gene, that means the foreign gene is actually coated with the microparticles. ठीक है, so let's say the foreign gene is this is the foreign gene. ठीक है, and it is what, it is coated with the microparticles of the gold and tungsten. So let's say this is now coated. ठीक है, so can you see that? I hope कोई बात नहीं. So this is the desired gene. ठीक है, and this is actually coated with what? This is coated with इस तरह से with what? With tungsten या फिर gold particle से coated है. ठीक है, now this will act as a what? It will act as a bullet now. ठीक है, ये क्या करेगा, ये act करेगा as a bullet. Now this have to what? This have to bombard. ठीक है, we have to bombard this particular बुलेट. ठीक है, किसमें, अपने टारगेटेड सेल में विद अ वेरी हाई वेलोसिटी. ठीक है, नाउ जब ये हमारा, अब हम जो ये बेसिकली जो बुलेट है, द साइज हैज टू बी मेंटेन, द साइज. ठीक है, ऑफ दिस बुलेट. ठीक है, दैट मीन्स द जीन कोटेड विद द गोल्ड एंड टंगस्टन पार्टिकल. ठीक है, उस पूरे एज टोटल सिस्टम का जो साइज होना चाहिए, दैट शुड बी बिटवीन 1 to 2 म्यू. ठीक है, एंड द स्पीड. ठीक है, द स्पीड शुड बी 1400 feet per second. Yes, unit is what? Feet per second. Why feet? Because हम already like we have to decide, like हमने वो फिक्स कर रखा है कि जो पर्टिकुलर टारगेट है, टारगेट से हाँ डिस्टेंस कितना होना चाहिए. ठीक है, दैट इज वाई द यूनिट इज इन व्हाट? फीट पर सेकेंड. ठीक है, नाउ इतनी ही हमने स्पीड क्यों रखी? ठीक है, इतनी स्पीड हमने इसलिए रखी कि लेट्स से देयर इज अ कंडीशन 1, इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड. ठीक है, अगर एक कंडीशन है जब हमने स्पीड को इंक्रीज कर दिया, देन व्हाट विल हैपन, दिस पर्टिकुलर बुलेट विल गो थ्रू एंड थ्रू द सेल्स एंड विल कम आउट फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सेल. ठीक है, इट विल पास थ्रू एंड थ्रू. ठीक है, एंड विल व्हाट, इट विल कम आउट फ्रॉम द अदर साइड if the speed will be high. ठीक है, and if the speed, ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर स्पीड से अगर कम हुई, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इस केस में जो बुलेट है, ठीक है, वो क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्लैश करके, ठीक है, इट विल वो रीबाउंड कर जाएगी बेसिकली. ठीक है, दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर जो स्पीड है, ठीक है, वो हैज टू बी मेंटेन, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंस हमने देखे, इफ द स्पीड विल बी हाई, इट विल पास थ्रू एंड थ्रू. ठीक है, बाहर से इस साइड से वो निकल जाएगी. अगर कम हुई तो वो किस तरह से क्या करेगी, इस तरह से बैंग करके वापस से रिबाउंड कर जाएगी. दैट इज व्हाई वी हैव टू मेंटेन दिस पर्टिकुलर स्पीड. ठीक है, और ये स्पीड जो है, ठीक है, ऑब्वियसली साइंटिस्ट ने यूं ही तो नहीं पता बना दिया होगा ये कि इतना पर्टिकुलर स्पीड होना चाहिए. नहीं, उन्होंने बहुत सारे ट्रायल्स किए होंगे ऑन द डिफरेंट सेल्स पे. ठीक है, डिफरेंट होस्ट सेल्स पे, तभी जाके ये जो इस तरह की जो स्पीड है, ठीक है, वो जस्टिफाइड हुई होगी. ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे होस्ट सेल्स पे परफॉर्म करके देखा होगा द सेम एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो एक ही उससे नहीं,
एक ही बार एक्सपेरिमेंट कर लिया, एक ही बार ट्रायल कर लिया, एक ही होस्ट से प्ले कर लिया और फिर ये स्पीड दे दी, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारे लाइक डिफरेंट डिफरेंट हर लाइक डिफरेंट ट्रायल्स के बाद या फिर कह लो मैंने ट्रायल्स के बाद ऑन अ डिफरेंट होस्ट सेल्स, ठीक है, तब जाके ये जो है लाइक स्टैंडर्ड स्पीड जो है, ठीक है, डिसाइड हुआ कि इस पर्टिकुलर स्पीड से अगर हम अपने जीन को इंसर्ट करना चाहें तो डेफिनेटली सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाई द स्पीड इज नाउ फिक्स्ड, ठीक है। क्या है द स्पीड, द लाइक ये जो शॉट होना चाहिए दैट शुड बी शॉट एट द स्पीड ऑफ 1400 फीट पर सेकेंड, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज अगेन, वो भी क्या होगा, वो भी जो नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज ऑल्सो वेक्टरलेस टेक्निक। सो द नेक्स्ट टेक्निक इज ऑफ इलेक्ट्रोपोरेशन। व्हाट? इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोपोरेशन। सो इलेक्ट्रोपोरेशन इज व्हाट? इट्स अ टेक्निक ऑफ, ठीक है, इट इज अ टेक्निक इन विच temporary holes created or produced on the plasma membrane bypassing, ठीक है, bypassing electric current at very high voltage for short period of time, for very short period of time, ठीक है। सो क्या है? इट्स अ टेक्निक इन विच द टेम्पररी होल्स आर क्रिएटेड और प्रोड्यूस ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन by passing electric current at very high voltage for very short period of time, ठीक है, so that जो just to like facilitate the entry of the foreign gene, ठीक है, what? To facilitate the entry of foreign gene, ठीक है, that means the cell is there, ठीक है, in which the temporary holes are produced on the plasma membrane. The cell is there, the cell has the plasma membrane now, ठीक है, तो plasma membrane है ये, ठीक है। इस पे क्या पास कराया? करंट पास कराया, ठीक है। सो करंट जैसे ही पास कराएंगे, ठीक है, करंट पास कराएंगे हाई वोल्टेज पे, तो क्या होगा? यहाँ पे टेम्पररी पोर क्रिएट हो जाता है, ठीक है, पोरेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन। तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द पोर्स हैज बीन क्रिएटेड नाउ। तो जैसे पोर्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, बाहर हमारा क्या है? बाहर हमारा है दिस इज द फॉरेन डीएनए, ठीक है। जैसे पोर्स क्रिएट हो जाएंगे दिस फॉरेन डीएनए विल गेट इनसाइड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल। तो अब जो हमारा फॉरेन डीएनए जो है वो क्या हो गया? वो सेल के अंदर आ गया, ठीक है। और यही हमने जो करंट है क्या कर रहे हैं? बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन तक के लिए दे रहे हैं। तो जैसे ही हमने शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद, ठीक है, करंट सप्लाई बंद किया, वैसे ही ये क्या है? ये जो हमारा होल था, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वो फिल हो जाएगा, ठीक है, रिकवर हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक वर्क्स। नाउ दिस पर्टिकुलर plasma membrane, that means this particular the cell, the host cell is now having our desired gene. It's now having a desired gene. So this is a technique, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट टेक्निक जिससे कि हम अपने डिजायर्ड जीन को पार्ट बना सकते हैं, किसका? होस्ट सेल का, ठीक है। द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टेक्निक इज द माइक्रो इंजेक्शन. So the last technique is what? Which is a vectorless technique again, ठीक है। The last technique is micro injection. Micro injection. So micro injection, this particular technique, the first I'll write and I'll explain.
in this technique the foreign DNA, ठीक है, या फिर the foreign gene is directly injected, ठीक है, is what, directly injected inside the nucleus, inside the nucleus of host cell, ठीक है, which is plant या फिर animal, ठीक है, through micropipette. Through what? Micropipette, ठीक है. So in this particular technique क्या करते हैं, the foreign gene is what, directly injected inside the nucleus of, ठीक है, क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट, जो कि प्लांट या एनिमल सेल है, थ्रू व्हाट, थ्रू द माइक्रोपिपेट्स, ठीक है. सो निडल लाइक माइक्रोपिपेट्स का जो नोजल्स होता है वो एकदम निडल लाइक एकदम बहुत ही नैरो होता है, उस पर हमारा होता है डिजायर्ड जीन, ठीक है, उसको जस्ट इंजेक्ट करते हैं और जो जीन है, ठीक है, वो डायरेक्टली इंसर्ट हो जाता है इनसाइड व्हाट, इनसाइड द लाइक इंजेक्ट हो जाता है इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, एंड न्यूक्लियस में वंस इट विल गो, इट विल ऑब्वियसली बिकम द पार्ट ऑफ द होस्ट डीएनए. सो दिस इज द माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है, और ये बेसिकली जो स्पेसिफिकली जो है यूज होता है इन द एनिमल सेल्स, ठीक है, एंड उसमें भी, ठीक है, यूज्ड जनरली या फिर यूज्ड कॉमनली, ठीक है, यूज कॉमनली इन एग सेल, ठीक है, लाइक एग सेल्स में कुछ भी अगर इंजेक्ट करना है, ठीक है, अगर आपने रिसेंट मूवीज देखी हो जैसे कि गुड न्यूज़ अगर आपने देखी हो, तो उसमें ये टेक्निक्स को ना दिखाया है, लाइक थोड़ा सा व्यू दिया है, विजुअलाइजेशंस दिए हैं, क्लिप्स दिए हैं, बेसिकली हल्के फुल्के, दैट जो पेट्री डिशेज है, पेट्री डिशेज में दे आर कैरिंग द एग सेल्स एंड दे आर एक्चुअली injecting the sperm cells with the help of the micropipettes into the nucleus of the egg cells, ठीक है. So these जो micro injection technique है, that is actually done in what normally या फिर बहुत ही commonly in the egg cells, ठीक है. So this is all about what, this is all about the competent cells, ठीक है. This is how we make our cells competent to take up our desired gene and perform the function which we want them to perform, ठीक है. So if we are making our desired gene the part of their DNA, that means we are successful in our desire, ठीक है. That means जो हमें चाहिए था वो हमें मिल रहा है, because once it will become the part of the host DNA, ठीक है, once our desired gene become the part of the host DNA, or we can say once our desired gene will get inside, ठीक है, somewhere around the nucleus of the host cells, then it will surely by other techniques or by some of the techniques will surely become the part of the DNA, host DNA, and once it will become the part of the host DNA, it will gonna perform central dogma, it will gonna express itself, ठीक है, and that is what we want, ठीक है. So this is all about what, this is all about competent cells, ठीक है. सो हमने अभी तक पूरा बायोलॉजिकल टूल्स पढ़ लिया, ठीक है, द टूल्स विच आर यूज इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दैट मीन्स द बायोलॉजिकल टूल्स, ठीक है, एंड द डिवाइसेस हैव लाइक येट हमने पढ़ा नहीं है, बट हमने कंप्लीट किया टूल्स कंप्लीट किए, जिसमें कि हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ा, वेक्टर्स, ठीक है, बहुत सारे वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, वेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स जो हमने नेक्स्ट लाइक प्रीवियस लेक्चर में हमने जस्ट पढ़ा था लेक्चर में, दैट इज वेक्टर्स, द पीयूसी फैमिली वेक्टर्स, द पीवीआर 322 वेक्टर्स, देन फाज लाइक बैक्टीरियोफेज जो है, ठीक है, जिसको हम बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफेज लाइक कुछ भी बोलते हैं, देन देयर इज अ टीआई प्लाज्मिड, देयर इज आरआई प्लाज्मिड, लाइक मेनी वेक्टर्स आर देयर, ठीक है, जो कि यूज होते हैं, सबका हमने काम पढ़ा, ठीक है, सबका हमने नाम पढ़ा, काम वॉय सबका हमने नाम पढ़ा, ठीक है. नाउ लास्ट में हमने पढ़ा व्हाट, द लास्ट बायोलॉजिकल टूल, दैट इज व्हाट, दैट इज द होस्ट सेल, ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज द होस्ट सेल. प्लाज्मिड once it is present in the E. coli, obviously it will what, it will self replicate, ठीक है, but the plasmid having our DNA, once it will incorporate into the plant cell or in the animal cells, ठीक है, तो it has to become about part of the like part of the होस्ट डीएनए, ठीक है. और हम तो कुछ टेक्निक्स ऐसे भी यूज कर रहे हैं जो कि क्या है, वेक्टरलेस है, दैट मीन्स वी आर एक्चुअली एक्सट्रैक्टिंग द डीएनए, ठीक है,
we are taking the DNA, the desired gene, ठीक है, desired gene, the gene of interest we are taking and we directly injecting into the host cell, ठीक है. तो यहाँ पे एक प्रोसेस जो है जनरली कम हो जा रहा है, ठीक है. सो these are the techniques used, ठीक है. सो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अबाउट द डिवाइसेस, ठीक है. तो डिवाइसेस यूज्ड इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है. सो जल्दी जल्दी मूव करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे.